ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 3.1। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਕਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਵਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਵਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਵਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਇਹ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਔਰ ਸੱਤਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਕਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਵਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਵਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਭੁਜ। ਬਹੁਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹਦੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਭੁਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ 4 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਭੁਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 4 ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਭੁਜ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 2 3 4। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ 1 2 3 4 5। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਡੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ। ਔਰ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ, ਇੱਕ ਸਮਛੇਭੁਜ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਏ, 2 ਬਣ ਗਏ, 1 ਅਤੇ 2। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 2 ਵਿਕਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਛੇਭੁਜ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ 6 ਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਭੁਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਮਛੇਭੁਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰਨ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਾਓ 1 2, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ 3 4, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ
इधरों असीं इधर मिला के 4 हो गए ना, 5 6 विचों वाला भी मिला दो इत्थों तक 6 7 8 होर चेक करो होर किहड़ा बन सकता है। 8 ते 1 हो गया, इदां मिल गया। एक चतुर्भुज दे विच 2 मिल गए, 2 इधरों मिल गए, एक पिछों सेंटर चो मिल गया, 8 हो गए से ना, एक सेंटर का आपस मिल जाएगा तो आखिर 9। इसका मतलब एक समछेभुज दे 9 विकर्ण हैं। एक समछेभुज दे 9 विकर्ण हैं। ठीक है। और तीसरा एक त्रिकोण। तीसरा पार्ट है त्रिकोण। एक त्रिकोण जितना सी बनाइए, त्रिकोण च देखो कोई भी इस तरह के विकर्ण नहीं बनते। मतलब एक त्रिकोण के कोई भी विकर्ण नहीं है। एक त्रिभुज या एक त्रिकोण का कोई भी विकर्ण विकर्ण नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अगले तीसरा प्रश्न, उत्तल चतुर्भुजां ते कोणां दा मापां दा जोड़फल की है? जे चतुर्भुज ना होवे ते की यह गुण लागू होवेगा? उस तो पता करना एक चतुर्भुज बना जो उत्तल ना होवे अते कोशिश करो। हुण एक उत्तल चतुर्भुज दे कोणां दा माप पता करना है तो फिर असीं देखना कि ये अगर चतुर्भुज नहीं है तो लागू हुंदा गुण उत्तल वाला कि नहीं। ठीक है, पहले असीं एक चतुर्भुज बनाने आ। एक चतुर्भुज बना लो, इहनूं नाम दे दिंदे आ ABCD। हुण इहदे विच इहनूं अगर विचों असीं कट के एक विकर्ण बना दईए तो 2 त्रिकोणां बन जांदियां। हुण असीं लिखांगे कि ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है अते यह 2 त्रिकोणां अते इस दा विकर्ण BD 2 त्रिकोणां ABD ते BCD बनाउंदा है। त्रिकोण ABD अते त्रिकोण BCD बनाउंदा है। ठीक है, फिर असीं लिखांगे इसलिए जिहड़े चतुर्भुज दे कोण हुंदे अंदरले इन्हां नूं अगर जमा करिए सारे कोणां नूं, इन्हां दा जोड़ कितना हुंदा है 360 हुंदा। और त्रिकोण दे 3 कोणां दा जोड़ इहदे और इहदे पहले त्रिकोण दे 3 कोण 1 2 3, इस त्रिकोण दे भी इन्हां नूं भी अगर जोड़ करिए इन्हां दा जोड़ भी 180 जमा 180 360 आंदा है। इसलिए चतुर्भुज दे अंदरले कोणां दा जोड़ अते दोनों त्रिकोणां दे कोणां दा जोड़ बराबर है। इसलिए उत्तल चतुर्भुज के कोणां का माप की होएगा? जोड़फल 360 होएगा। ठीक है, इसलिए असीं भी लिख सकते कि जो भी उत्तल चतुर्भुज है उहदे लई ये चीज़ ठीक होएगी और जो
उत्तल नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं ठीक होगी। इसलिए उत्तल चतुर्भुजा दे कोना दे मापां दा जोड़फल 360 डिग्री है। इसलिए अगर ये चतुर्भुज नहीं होएगा तो ये गुण लागू नहीं होगा। इसलिए जे चतुर्भुज ना होवे इसलिए चतुर्भुज जे चतुर्भुज उत्तल नहीं है ता यह गुण लागू होगा। ये आंसर आएगा। अगला है चौथा प्रश्न, सारणी की जांच करो, हर एक चित्रा नूं त्रिभुज विच वंडो, कोना दा जोड़फल पता करो। ठीक है, सानूं चित्र दिते हुए है, त्रिभुजा एरिया 3 भुजावां दी 4 5 6 दिते, कोना दा जोड़फल भी दिता होया। एक बहुभुज के कोना दा जोड़फल बारे भी तुसीं की कह सकते हो, जिसदी भुजावां दी संख्या हुण 3 4 5 6 इन्हां दियां ते सानूं भुजा दसियां होईयां और कोना दा जोड़फल भी दसिया होया। और अगर हुण 5 6 तक दियां सानूं दित्तियां होईयां आंसर 7 दा पता करना, 8 दा 10 दा एन दा, जे एन होवे तां की होएगा, कोना दा जोड़फल पता करना है। कोना दा जोड़फल सानूं ये दिता होया है। ठीक है, इत्थों साडे कोल कोना दे जोड़फल का फार्मूला बन जाता है, कोना दा जोड़फल का फार्मूला होंदा है n-2 गुना 180। एन की होएगी कोई भी भुजा, जे जिद्दां जे अगर 3 है तो असीं 3 पुट करांगे, 3 - 2 1 ही आएगा, 180 आ जाएगा। अगर 4 है तो आ जाएगा 4, इत्थे 4 लिखांगे, 4 - 2 180 आवली बन जाएगी। मतलब 5 है तो 5 - 2 मतलब फार्मूला बन गया। हुण असीं ए दा 7 अगर साडे कोल भुजावां दित्तियां होईयां ते कोना दा जोड़फल पता करना है, की आ जाएगा, कोना दा जोड़फल की आएगा, कोना दा जोड़फल अगर भुजावां 7 है तो एन की जगह तो 7 लिख दो, 7 - 2 गुना 180। अगर 8 है तो फिर 8 लिख दो, कोना दा जोड़फल बी विच असीं 8 करना है तो एन की जगह तो 8 लिख दो, 8 - 2 गुना 180। ठीक है, इन्हूं सोल्व भी कर लो। 7 - 2 कितना होंदा है, 5 गुना 180, 5 नूं 180 नाल गुना करो तो आ जाएगा 900 डिग्री। 8 - 2, 8 चो 2 माइनस करो, 6 गुना 180, 180 नूं 6 नाल गुना करो तो आ जाएगा 1080 डिग्री। उस तो बाद है 10। हुण कोना दा जोड़फल असीं 10 लिखना है तो एन की जगह तो 10 लिख दो, 10 - 2 गुना 180, 10 चो 2 के 8, 8 गुना 180, 8 नूं 180 नाल गुना कर दो, आ जाएगा 1440 डिग्री। अगर एन नहीं है तो फिर साडा फार्मूला रह जाएगा वही, फिर असीं कुछ नहीं करना, सिर्फ वही फार्मूला ही लिख देना। एन की जगह तो एन ही आ जाएगा, n - 2 गुना 180 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा चौथे का। ठीक है, नैक्सट टाइम असीं 5वां प्रश्न करना है। 5वें प्रश्न च दसिया एक पहला दसना है कि समबहुभुज की है। एक समबहुभुज का नाम दसो जिस दियां 3 भुजावां आपस में बराबर है। तो समबहुभुज की होएगा, अगर 4 बराबर आपस में बराबर तो केड़ा होएगा, अगर 6 भुजावां आपस में बराबर है तो समबहुभुज केड़ा होएगा। समबहुभुज की हुंदा है जिहदियां भुजावां भी बराबर होण ते जिन्हां दे कोण भी आपस में बराबर होवे। समबहुज की लिखांगे, बराबर भुजावां ਅਤੇ बराबर कोना वाले बहुभुज नूं
सम बहुभुज कहते हैं। हाँ ठीक है, हुण तीन भुजावां बराबर है, एक असीं त्रिकोण बनाइए। अगर असीं तीनों भुजावां आपस च बराबर है तो ये त्रिकोण किहड़ी होएगी, समभुजी त्रिकोण होएगी। ठीक है, ਇਹਦਾ हरेक कोण 60 डिग्री का होएगा। कोण सारे कोण 60 डिग्री के कोण भी बराबर हो गए, भुजावां भी बराबर हो गई। इसका मतलब पहले तक आ जाएगा समभुजी त्रिभुज आएगी। ये एक समभुजी त्रिभुज है, जहाँ त्रिकोण है कुछ भी लिख दो। वो चार भुजावां बराबर, चार भुजावां किहदियां बराबर होंदियां, वर्ग दियां। ठीक है, चार वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का होंदा है और भुजावां भी आपस में सारियां आपस में बराबर होंदियां। की हो गया, चार भुजावां वाला समभुज बहुभुज एक वर्ग है। चार भुजावां वाला सम बहुभुज एक वर्ग है। नैक्सट है तीसरे 6 भुजावां। 6 भुजावां जिहदियां बराबर होना वो की हुंदा है, समछेभुज हो जाता है। 6 भुजावां वाला बना लो एक। ये सारी भुजावां बराबर होणगियां और ये कोण भी आपस में सारे इत्थे जिहड़े बनणगे वो भी बराबर होणगे। फिर एक कोण इत्थे 120 डिग्री का आएगा, सारे कोण 120 ये कोण 90 के आएंगे। इत्थे लिखांगे 6 भुजावां वाला सम बहुभुज एक समछेभुज है। नैक्सट 6वां प्रश्न, ये सन सब के चित्र दिते हुए, सब के असीं एक्स की वैल्यू कढ़नी है। पहला मैं चित्र अद्धे लिख बनिया होया इत्थों लैके कर दिंदी हाँ कि पहले देखो एक चतुर्भुज बनती पई और चतुर्भुज के सानूं पता चारों कोणां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा, 360 हुंदा है। इसलिए सारे नूं प्लस कर दो। 50 जमा एक्स जमा 130 जमा 120 बराबर है 360 के ब्रैकेट च ले दो, क्योंकि चतुर्भुज का मैं निशान ही बना देनी है। चतुर्भुज के कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। हुण इहनूं प्लस 50 च 130 120 प्लस करो, कितना आ जाएगा 300 आएगा। एक्स जमा 300 बराबर है 360 के, तो एक्स कितना आ गया 360 माइनस इधर जाके बन जाएगा 300 माइनस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, हुण असीं इहदे विचों दूसरी पासे चों कढ़ना है एक्स की वैल्यू। तो पहला की करांगे, चैक करो देखो कि साडे कोल हैगा है कि इत्थे नंबर 1 बनता पिया, हुण इत्थे देखो सानूं एक दिता इत्थे एंगल 1 है, कोण 1 है, इत्थे बाहर भी 90 डिग्री का निशान बना, मतलब कोण 1 जमा 90 ये आपस में एक रेखी जोड़ा बनाता भी, एक लाइन से बनता पाया वो होंदा 180 डिग्री का। तो चित्र एक कोण 1 जमा 90 बराबर है 180, इत्थे लिख दो रेखी जोड़ा। कोण 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 इधर जाके 90 हो गया। हुण कोण 1 भी निकल आया, बाकी 2 दिते हुए आ, तो इसका मतलब फिर असीं चतुर्भुज के कोणां दा जोड़ 360 करके एक्स की वैल्यू नहीं कढ़ देंगे। फिर इसलिए साडे कोल बन जाएगा 1 की जगह ते पहले लिख दो कोण 1 जमा 60 जमा 70 जमा एक्स बराबर है 360 दे, तो ब्रैकेट च लिख दो, क्योंकि चतुर्भुज के कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। ये आ गया। एक सानू 90 दिता, एक की जगह ते 90 लिख देंगे। 90 60 और 170 प्लस कर दो 130
जमा एक्स बराबर है 360 ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 220 ਜਮਾ एक्स बराबर है 360 ਦੇ। दो सौ भी जमा एक्स बराबर है 360 ਦੇ 220 उधर ले जाओ। ये बन जाएगा एक्स बराबर है 360 माइनस 220 माइनस कर दो 140 डिग्री। ये आंसर आ गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ करना है तीसरा पार्ट। तीजा भी चित्र ਵਿੱਚ देखो की होगा। पहला ਅਸੀਂ कोण 1 जमा 70 रेखी जोड़ा बनावांगे, 2 जमा 70 भी रेखी जोड़ा बनावांगे। ठीक है 180 के बराबर आ जाएगा। कोण 1 जमा 70 बराबर 180 दे, कोण 2 जमा 80 से, कोण 2 जमा 60 180 दे। इत्थे लिख दो ब्रैकेट च, इत्थों आ जाएगा कोण 1 आ गया 180 माइनस 70 110 दे, और इत्थों आ जाएगा कोण 2 180 माइनस 60 दे। कितना आएगा 180 चो 60 माइनस कर दो 120 डिग्री। ब्रैकेट से लिख दो रेखी जोड़ा। रेखी जोड़े तो साढ़े कोई चीज़ बन गई। ठीक है हुण असीं करके बहुभुज दे। हुण ये सानूं की दित्ती है पंजभुज दित्ती है। पंजभुज की हुंदी है फार्मूला कि साडे असीं पिछे लाया बहुभुज वाला n माइनस 2 गुना 180। तो असीं फिर वही लावांगे बहुभुज दे कोणां दा जोड़फल जां बहुभुज दे कोणां दा जोड़फल। बहुभुज किन्ना पंजभुज की है 5 एन दे पॉइंट 5 माइनस 2 गुना 180। 5 चो 2 माइनस करो 3 गुना 180। तीनों 180 ना करांगे तो 540 आ जाएगा। इसलिए हम सारे कोण प्लस कर दो। सारे कोण कितने आएंगे 1 जमा 2 एक्स जमा 30 जमा एक्स। कोण 1 जमा 2 जमा एक्स जमा 30 जमा एक्स बराबर है 540 थे। ये आ गया। कोण 1 कितना 110 है 110, कोण 2 120 जमा 30 एक्स और एक्स जमा 2x बराबर 540 दे। सारे नू जमा करो। ये सारा जमा करके टोटल आ जाएगा साढ़े को 260 दे। 260 जमा 2x बराबर 540 दे। 2x कितना आ जाएगा 540 माइनस 2x माइनस कर दो 280 आ जाएगा। x कितना आ गया 280 बटा 2 कट के 140 डिग्री। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट की है उन्हें भी कि सन दिती हुई है पंजभुज है 1 2 3 4 पंजभुज है। फिर वही पहले दे कोणां दा जोड़ कढ लांगे ते फिर एक्स की वैल्यू कट देती है। पंजभुज दे कोणां दा जोड़फल। फिर वही फॉर्मूला n माइनस 2 n की जगह तो लिखांगे 5 माइनस 2 गुना 180। 5 चो 2 घटा 3 गुना 180 540 डिग्री आ गया। और हुण की करना सारे कोण जिन्ने भी सारे कोण की एक्स ही है एक्स 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 5 वाली प्लस कर दो 540 के आ जाएंगे। इसलिए एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स 1 2 3 4 5 बराबर 540 5x बराबर 540 देते। एक्स कितना आया 540 बटा 5 कट दो 108 दे। ਇਹਦਾ मतलब एक्स आ गया साढ़े को 108 डिग्री। ये आंसर आ गया। ठीक है नेक्स्ट है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न जो ए पार्ट असी पता करना है एक्स जमा वाई जमा जेड पता करो। तो ये जो सानू एक चित्र दिता है पहले असी चित्र बना लेंगे।
ये ऊपर नहीं हैगा साडे कोल, इधर है इस तरह नीचे थल्ले गया होया, ये इधरों इधर गया होया, ये ऊपर नूं गया होया, इत्थे एक्स है, ये है 90 डिग्री ते जेड 30 डिग्री, ए ते वाई। ठीक है, हम पहले से की करांगे सब दे एक्स जमा 90 बराबर 180, ए जमा वाई जमा बराबर 180 करांगे, ए जेड जमा 180 रेखी जोड़े सब दे बना लांगे। क्योंकि एक्स जमा 90 बराबर है 180 दे रेखी जोड़ा, एक्स कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 90 आ गया। इतों भी बना लो रेखी जोड़ा, जेड जमा 30 जेड जमा 30 बराबर 180 रेखी जोड़ा, ये कितना आ जाएगा जेड बराबर है 180 जमा माइनस करांगे तो जाके माइनस 30 150 डिग्री। हुण सानूं इत्थे ए ते वाई दोनों की वैल्यू नहीं दी, पहले असीं ए की वैल्यू कढ लैंदे आ। अगर एक त्रिकोण बनाइए तो की आ जाएगा त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होंदा है, इसलिए क्यों इसलिए 90 जमा 30 जमा ए बराबर 180 दे, क्योंकि त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होंदा है। ठीक है, 30 जमा 90 120 जमा ए बराबर है 180 दे, ए कितना आ गया 180, इधर जाके माइनस हो गया 120 150 दे बन गया। हुण असीं की करांगे ए जमा वाई, हुण ए जमा वाई बराबर है 180 दे कर देने रेखी जोड़े नाल, ए कितना 150, ए की जगह लिख देने 150 जमा वाई बराबर है 180, वाई कितना आ गया 180 माइनस 150, 180 चो 150 घटा दो 30। हुण असीं पता की करना सी, इसलिए एक्स जमा वाई जमा जेड असीं ये पता करना है, एक्स कितना है एक्स आया 90, वाई आया साडे को 30, एक्स की जगह ते 90 लिख दो, वाई आ गया 30 और जेड 150। एक्स आया सी 90, एक्स 90 आया, वाई कितना आया ये कितना सॉरी 180 चो 120 माइनस करांगे 60 आंदा, सॉरी गलत करता मैं इत्थे, इत्थे 60 आना सी, ए की जगह ते 60 लिखांगे ते 60 माइनस करो, 180 चो 60 माइनस करांगे तो 120 आएगा इत्थे। ठीक है, वाई की जगह ते 120 लिखांगे, इन्हों प्लस कर दो, ये बन जाएगा 360 डिग्री। नैक्सट हम असीं 70वें का दूसरा पार्ट करना है, उस भी एक्स जमा वाई जमा जेड ही निकालना है, और डायग्राम सानू थोड़ी अलग दिखती है चित्र का, एच भी एक्स जमा वाई जमा जेड पता करो, और डायग्राम दिती है सानू इस तरीके की दी हुई है। इत्थे जेड 60 डिग्री, बी डबल्यू 120 डिग्री, एक्स 80 ते वाई। फिर उत्ते इसे करांगे जेड जमा 60 रेखी जुड़ा बना दें, क्योंकि जेड जमा 60 बराबर 180 दे रेखी जोड़ा, जेड कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 करांगे 120 आ गया। ठीक है, हुण असीं तो वाई जमा 80 करते हैं, इसी तरह
y जमा 80 बराबर है 180 दे भी रेखी जोड़ा बना रहा है। माइनस कर दो, y बराबर है 180 माइनस 80 माइनस करके आ गया 100 डिग्री। हम दूजा इत्थों बन जाएगा रेखी जोड़ा 120 जमा x भी 180 बना रहा है रेखी जोड़ा। x कितना आ गया साढ़े को 120 माइनस 180 माइनस 120 करो 60 डिग्री। हम साढ़े को बी दी ये तो सन दोनों नहीं पता, पहले असी बी की वैल्यू निकालते चतुर्भुज विचों, इन्हें सारे प्लस कर दो क्योंकि बी जमा 60 जमा 80 जमा 120 बराबर है 360। देखो कि चतुर्भुज दे कोणां दा जोड़फल जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। इन्होंने प्लस कर दो, कितना बनेगा 260 बन जाएगा। बी जमा 260 बराबर है 360 दे, बी बराबर आ गया 360 माइनस 260 100 आ गया। इसलिए बी प्लस डबल्यू रेखी जोड़ा बनाने हैं एक्स वाई जेड प्लस डबल्यू भी है। बी प्लस डबल्यू बराबर है 180 दे रेखी जोड़ा। बी कितना आ गया 100 जमा डबल्यू बराबर 180 दे, इसलिए डबल्यू आ गया 180 माइनस 180 डिग्री दे। ठीक है, इसलिए एक्स जमा वाई जमा जेड प्लस डबल्यू बराबर है एक्स कितना आया साढ़े को 60, वाई कितना है 100, जेड 120 और डबल्यू आया 80 दे। प्लस करो कितना आ जाएगा सारा 200 300 360। टोटल आंसर आ गया साढ़े को 360 डिग्री। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो।